اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں، جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی، وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی نازک چوڑیوں کے مانند ہوتا ہے، کھنکھناتا ہے تو آنکھیں نم کر دیتا ہے، اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے، اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسرت اور بغض سے کالا کر لے۔ اتنی مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں، اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تم اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایات نہیں، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ لاپرواہی ایک ایسی دیمک ہے جو کسی بھی رشتے کی کشش کو کھا جاتی ہے۔
चाहे इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, अगर वो वाकई परवाह करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वक़्त निकालेंगे। अपना दुख और तकलीफ़ हर इंसान को मत बताइए, क्योंकि हर घर में मरहम हो ना हो लेकिन नमक ज़रूर होता है। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के मामलात को सिर्फ इतनी तवज्जो दें जितनी नहाते हुए अपने कमर को देते हैं। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत, इन तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है, मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की ज़िंदगी को इन तीनों नेमतों से सदा माला माल रखे, आमीन। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ ना करें। अमीर और गरीब में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अमीर जिस खाने को खाकर हज़म करने के लिए भागता है, गरीब उसी खाने को हासिल करने के लिए सैकड़ों मील चलता है। अमीर डाइटिंग करता है, गरीब फाके काटता है। दोस्त वो हो कि जिसके साथ बैठे हैं लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही, फिर भी आप खुश हैं कि वो पास बैठा है। सीखा है मैंने ज़िंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही सोचता है। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा होना खूबी की बात नहीं, खूबी की बात तो आपका आला नस्ब या इल्मी और तालीमी काबिलियत का होना है। इन दो चीज़ों के साथ आपने पैसा भी कमा लिया हो तो ये असल फ़ख्र की बात है। मुश्किलों पर गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पर गौर करेंगे तो आसानियां बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। ज़िंदगी जिसके हुक्म से कायम होती है, मौत भी उसके हुक्म से वाक़या होती है। क्या कर लेंगे इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक़्त ज़ाया करोगे। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ये शिकवे भी बड़े कीमती होते हैं, ये हर किसी से नहीं किए जाते, और जिनसे शिकवे किए जाते हैं वो लोग बहुत कीमती होते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला रखता है जहां से रहमत ठंडी हवा के झोंकों की तरह आकर दिल को पुरसुकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी तो मुश्किल के साथ मौजूद रहती है। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तरफ को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मुकाम मिल सके। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो इसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना कर ए इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। बेशक अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लाने पर कादिर है। इंसान जिस चीज़ का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब वही चीज़ हकीकत बनकर उतरती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी में हर मोड़ पर आपका सामना रास्ते पर पड़े पत्थरों से होगा। अब ये आप पर मुनहिसर है कि आप इससे क्या बनाते हैं, मुश्किलों की दीवार या कामयाबी का पुल। बेशक अल्लाह आंखों की सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी में पैसे और नाम की अहमियत सबसे बढ़कर हो, वो फिर किरदार की परवाह नहीं करते। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फायकून का मालिक है, एक वही ये मुसीबत टाल सकता है। हर दिल सोना नहीं बन पाता, ये बहुत ही बाज़रफ़ लोगों के दिल होते हैं, क्योंकि कोई टूट कर बन जाता है तो कोई टूट कर बिगड़ जाता है।
استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ یہ جو پتھر کے ہو چکے ہیں اپنے حصے کا رو چکے ہیں۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دوستی اور دل کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ اے اللہ، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ دیکھنا، جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے مانگتے ہو۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ جو اللہ کا زیادہ شکر گزار رہے وہی لوگوں کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کو تاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کریں اور درگزر کر دیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔
इंसान हर शय के बगैर रह सकता है मगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफल इबादत से बेहतर है। इंसान की असल मौत इस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे फिर वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। अल्लाह से पनाह मांगो जहन्नुम के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो कब्र के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो मसीह दज्जाल के फितने से और अल्लाह से पनाह मांगो ज़िंदगी और मौत के फितने से। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सुलह रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्लो सूरत। गलती होने पर छोड़ जाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है, उसका हर अंदाज खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान भी है, रहीम भी है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। खजूर की गुठली पर बारीक सा झिली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान इसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। जैसे मेरा रब चाहे वो जिसको चाहे रंग लगा दे, पुर उम्मीद रहे मायूसी गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारिशी बनकर आएगा। मुआफ़ी से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से नहीं जाती। जब अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 जगह पर झूठ जायज़ और हलाल है। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि इसको राज़ी कर ले, दूसरा जंग में झूठ बोलना और तीसरा लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रात में एक ऐसी घड़ी है कि इस वक्त कोई मुसलमान शख्स दुनिया और आखिरत की जो भी चीज़ अल्लाह से मांगता है तो वो इसे वही चीज़ अता फरमा देता है, और ये हर रात होता है। 3 चीज़ें गुनाह की बुनियाद हैं। तकब्बुर, जिसने इब्लीस को शैतान बनाया। हिर्स, जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया। हसद, जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। अल्लाह पाक हमें तकब्बुर, हिर्स और हसद से अपनी पनाह में रखे, आमीन। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होते हैं: औलाद और ख़ास कर बेटी को गाली देना, दिल में बुग़्ज़ रखना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, अजान के वक़्त काम में मसरूफ़ रहना, माँ बाप की अकल को कोसना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दस्तरख्वान पे बातें करना, खड़े होकर पानी पीना, वुज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना। इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसी लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। किसी को अपनी ज़िंदगी में रोकने के लिए ज़बरदस्ती ना करो, वाकई आपको चाहते हैं ना तो वो ठहर जाएंगे आपके लिए। पूरा यकीन रखो अपने अल्लाह की रहमत और अपनी दुआओं पे, वो अल हकीम है, तुम्हारे हक में बेहतरीन फ़ैसला फरमाएगा। इंसान को ज़ेब नहीं देता कि जब इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमाल का मेहरबान और खबरगीर हो, फिर भी बंदा बेआस और बेयकीन हो। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहां दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें।
तोता तो मिर्चें खा कर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस है इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। लोगों के लफ्ज पत्थरों की तरह होते हैं, अपने ऊपर लादोगे तो कमर तोड़ देंगे और कदमों में रखोगे तो बुलंदी पर पहुंच जाओगे। इंसान इतना कम ज़र्फ है, एक खुशी को लेकर हमेशा हंस नहीं सकता, पर एक गम में तवील अरसा तक रोता रहता है। जेब में पैसे होने के बावजूद बाजार से गुजरते हुए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पूरी न करने वाला शख्स कंजूस नहीं बल्कि एक बाब होता है। नफरत के पर होते हैं, ये सूरत से फैलती है। मोहब्बत और शफकत के पांव होते हैं, इसे कदम जमा जमा कर चलना पड़ता है। किसी को इग्नोर करने की वजह ये नहीं होती कि आप इसे नापसंद करते हैं, बल्कि इनसे बात करने की वजह से पैदा होने वाले फसाद से डरते हैं। अल्लाह वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। बहुत अंदर तक तबाही मचा देता है वो आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से दिल भर जाता है। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां खुदा की जात देती है। इंसान का दिल मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को पसंद करता है। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो वो कामयाब हो गया। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना मकबूल हज का सवाब है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। अपनी तकलीफ इसको बताओ जो हल कर सके, हर किसी को बताओगे तो अपना मुकाम खो बैठोगे। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट दर्द की शिकस्त भी है और चेहरे की रौनक भी। दूसरों की जिंदगी आसान करें और अपनी आखिरत। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जाती है। आप समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रोंद डालता है। जिंदगी में जब इंसान को हदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है, बस वहां से रास्ता बदल ले। कुछ शामें जिंदगी की ऐसी भी होती हैं जहां रफ्ता रफ्ता सूरज नहीं, हम डूब जाते हैं। गुनाह को फैलाने का जरिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो, पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। हराम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता है। बात करने में मज़ा उन लोगों के साथ आता है जिनके सामने बोलने से पहले सोचना ना पड़े। जब कोई आपको बिला वजह नज़रअंदाज करे तो समझ लो कि वो आपसे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने की खामोशी से गुजारिश कर रहा है। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। ज़माना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। नेक लोग अपने अंजाम से खौफज़दा नहीं होते। जब तक तुम अपने बुरा चाहने वालों से अच्छा सलूक नहीं करोगे, तुम नेकी के बुलंद दर्जात नहीं पा सकते। दुनिया के अंदर दीन नहीं, बल्कि दीन के अंदर दुनिया है। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। जो लोग रिश्ता निभाने के लिए दिल बड़ा करते हैं, अक्सर इन लोगों को दुख, तकलीफ और धोखे ही मिलते हैं। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत तक ना करे, यकीन माने उस शख्स से ज्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ
जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। रिस्क की फिक्र न करो, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। आखिरत की फिक्र करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। धोखेबाज की जुबान मीठी और दिल कड़वा होता है। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द मिटा देगा। कभी कभी हम किसी के लिए इतने ज़रूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। एक गलत शख्स की संगत आपको फूल से धूल कर सकती है। जिंदगी में अहमियत हमेशा उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। खामोश रहा हमारी नेकी पर ज़माना, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी बोलने लगे। या अल्लाह, उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। बाप चाहे कितना ही बूढ़ा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। खास हैं वो लोग जो वक़्त आने पर वक़्त देते हैं। वालिदैन का अदब ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत को भी संवार देता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफ़ी, दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। जो दोगी वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। बेटी का पहला हक जो अक्सर लोग खा जाते हैं वो उसकी पैदाइश की खुशी है। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फितरत है। मेरी गुर्बत को देख कर रास्ता ना बदल, मैं दिल का बादशाह हूँ, मुकद्दर तो खुदा लिखता है। हासिल करने की शिद्दत और फिर खो देने का डर, बस इतनी सी है जिंदगी। अपना तो ताल्लुक उस ज़ात से है जो किसी दर पर झुकने नहीं देती। ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंसान आग और कांटों के बीज बोए और उम्मीद रखे कि फूल खिलेंगे। किसी गमज़दा की आंख से आंसू चुराकर उसके चेहरे पर खुशियाँ बिखेरना अजीम नेकी है। पूछा गया, सब्र जमील क्या होता है? कहा, जब तुम आजमाए जा रहे हो और दिल तुम्हारा कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ देखने वाले, अपने रब के करम को देख। जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह उसके पास ले जाते हैं, वो सुबह उन्हीं के हाथ तेरा रिस्क भेजता है। हर जख्म की दवा है, मगर बुरे इखलाक की कोई दवा नहीं। इज्जत के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है। ऐसे लोगों को कभी अपनी तरजीहात में शामिल ना करें जिन्हें आप तब मुयस्सर हों जब उन्हें कोई मुयस्सर ना हो। वक़्त बख़त और तख़त हमेशा तब्दील होते रहते हैं। इनको जो अपनी जागीर समझेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। गलत को गलत खुल कर कहें, तारीख ठुकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़े के रूनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करता है। बेटियों से मोहब्बत करना, उन्हें इज्जत देना और उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिसकी सोच जैसी उसके अल्फाज वैसे, जिसके जैसे अल्फाज उसके किरदार वैसे। किसी से कुछ कहने से हमें क्यों फ़र्क पड़े, जिसके जैसे किरदार उसके हिसाब वैसे। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल हैं। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। अमानत सिर्फ चीज़ें या रकम की नहीं होती। कोई अपने जज्बात बयान करे, अपने दुख सुनाए तो उसमें भी ख़यानत ना करो। दुनिया में बाप जैसा मुखलिस दोस्त कोई नहीं। वक़्त ने दिखा दिए हैं अदाकार भी, वफादार भी। ज़िंदगी वो नहीं जो हम सोचते हैं, बल्कि ज़िंदगी वो है जो हमें सहनी पड़ती है। मुश्किल वक़्त ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर यही वक़्त इंसान को मजबूत बनाता है। बुरा वक़्त गुजर जाता है, लेकिन मुनाफ़िकों और खुद गर्ज़ों के चेहरे और रवैये मरते दम तक याद रहते हैं। पता है इंसान कहाँ हारता है? जब उसकी लड़ाई उसके अपनों से हो। बड़ी खुशी के इंतज़ार में छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल 4 रिश्तेदार तभी इकट्ठे चलते हैं जब 5वां कंधे पर उठाया हो। अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं।
जिंदगी की हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। कभी हम वो भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि मेरा है। इंसान को जीना आना चाहिए, मर तो सभी जाते हैं। जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो उन्हें बुरा नहीं कहते। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास होता है। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते में मेरा रब थाम लेता है। हर शख्स कुछ ना कुछ अकल रखता है, लेकिन हर शख्स अकल से काम नहीं लेता। दुनिया के लिए काम करते रहो जब तक कि दुनिया के काम तुम्हारे लिए काम करने लगे। गुरूर किस बात का, दुनिया का हर रास्ता कब्रिस्तान को जाता है। कामयाबी इंसान के दिमाग में है। अगर आप कामयाबी के लिए सोचेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही असल अखलाक है। गलत फहमी दूर करने का वह तरीका बातचीत और गुफ्तगू है, और हम गलत फहमी के बाद सबसे पहले यही दरवाज़ा बंद करते हैं। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के न मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फजर की नमाज नसीब नहीं होती तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुकात ख़राब होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए, आमीन। सजदों में गिरने से पहले इन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ मुआफ़ नहीं होती। मौत इंसान को ज़रूर मार सकती है, मगर अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। मुसाफहा से गुनाहों का झड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफा करता है तो इन दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते गिरते हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है उसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह, हमारे वालिदैन की बेहिसाब मगफिरत फरमा। उस तरफ हो जाओ जिधर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ख्वाह सारी दुनिया दूसरी तरफ हो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मुंह है। अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसको बंद रखें। नमाज को मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकत इसी में है। ज़िंदगी में कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं। डर होता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। सच में खुशी, झूठ में परेशानी है। सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान है। अल्लाह की ज़ात से कभी ना उम्मीद मत होना। वो ज़िंदगी वहाँ से शुरू कर सकता है जहाँ से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खुददारी और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत हर इंसान का फ़र्ज़ है। अगर हम खुद अपनी इज़्ज़त की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगी। अपना वो है जिससे बातें खुल कर की जाएं, ना कि संभल कर। बीवियां जवानी में मालकन, अधेड़ उम्र में दोस्त और बूढ़ी उम्र में नर्सों का किरदार अदा करती हैं। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है। सजदे ज़मीन पर करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। तेरे अंदर बाहिर सारा मट्टी का सामान, मट्टी पे करे मान, वाह रे इंसान। हर आजमाइश के पीछे इतना बड़ा सिला होता है कि अगर तुम जान लो तो कभी शिकवा ना करो। किसी को अच्छे अमल से खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है। मेरे ज़िंदगी के सब हासिल या अल्लाह तेरे कुन से जुड़े हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की, तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, क्या पता वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका मदावा नहीं कर सकते। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वह बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। जब ये महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं तो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ो। बेशक अल्लाह का रास्ता बंद नहीं होता। या अल्लाह, हमको हमेशा नेक लोगों की सोहबत अता फरमा
اور بروں کی صحبت سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اٹھ سکو گے نہ چل سکو گے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سیانے کہتے ہیں، اتنے بھی اجڑے نہ بنو کہ باقی سب میلے نظر آئیں۔ میں نے خود کو اس خوش فہمی سے نکال دیا ہے کہ میری کمی کسی کو اداس کر سکتی ہے۔ انسان کا غرور ختم کرنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ جب وہ نہیں تھا دنیا پھر بھی چل رہی تھی، اور جب وہ نہیں ہوگا یہ دنیا پھر بھی چلتی ہی رہے گی۔ جب مان ٹوٹ جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کوئی گلہ کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ کوئی شکوہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے سارے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے تو دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلی نیت نہیں جان سکتے۔ کون سی عادتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بہت زیادہ بولنا، اپنا راز کسی پر ظاہر کر دینا اور ہر ایک چیز پر اعتماد کر لینا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں تو وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ عموماً عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ جب اوپر والے نے میرا برا نہیں سوچا تو یہ نیچے بیٹھے لوگ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ موت سے بچ سکتا ہے، جہنم سے نہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔
عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ مسکراتے رہنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اصل ترقی تب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے خود کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے۔ اس دنیا میں اتنا خدا نہیں آزماتا جتنے لوگ آزماتے ہیں۔ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کتنی پرسکون جگہ ہے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ نفرتیں، نہ بدگمانیاں۔ چہرے کی چمک اور مکان کی اونچائی پر مت جاؤ۔ اگر گھر کے بزرگ ہنستے ہوئے ملے تو سمجھ لو یہ گھر واقعی امیروں کا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ تم کوئی بھی ہو، اگر تمہاری زبان محبت ہے تو تم خوبصورت ہو۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، حسن تو ایک دن ڈھل جائے گا۔ شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے۔ انسان کو اکثر زہریلے کانٹے بھی وہیں سے ہی ملتے ہیں جن کے لیے وہ پھول چنتا ہے۔ کھا گئی ہمیں کچی عمر میں ہی اذیتیں، عین جوانی میں ہی ہم بوڑھے لگنے لگے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم صرف سہ سکتے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ کھچڑی اگر برتن میں پکے تو بیمار انسان کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور اگر دماغ میں پکے تو صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ وقت بہت کم ہے، مخلوق خدا سے محبت کریں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا۔